Oh, what makes Test cricket so special? I mean, there's so many words that could describe Test cricket, but I think it's the ultimate challenge for any cricketer. Well, this is probably what you work for. You work to get to be the best, you know, the best in the world. The world's a large place. We know that Test cricket is probably the most respected format in the game. And I think the innovation to bring in the World Test Championship is a good one. I think it's a great way of getting people in. Every competition needs a climax. We all love watching the drama unfold. It's a test of your patience. It's good to be having this kind of final and have content for Test cricket. Now everyone looks forward to a Test series. Each and every Test match becomes very important, whether you play home and away. It's important. It really is important, I think, to have the icing on the cake, and I think the final is a great way of doing it. Test cricket is still, when it's played well, I think the best form of the game. I think just being called a Test match, because it's exactly that, it's a test of every single part of you as a person. It tests your physical abilities, your mental abilities, your concentration powers, working together. You can lose a whole session and still win the match, as we've seen for many times. So the ultimate is to play Test cricket. And I think the guys that will go down in the record books are the guys who performed in the Test arena. Toughest to perform in consistently as well, because every aspect of your team environment and your own personal game is challenged in Test cricket. And certainly as a player, Test cricket is the one where you want to be recognised. And to play at your best in a World Test Championship, I think would be the aim of all cricketers, to perform on that really big stage. So yes, the World Test Championship is critical to the future of Test cricket. And if you can say for 1 year at least, we're the best team in the world, then you've really done extremely well. And you'll be proud of your achievement. So it would be a great occasion for anyone winning this championship. There is nothing like the ultimate of Test match cricket, because the best team will always win. For me, if we lose Test cricket, we lose cricket. It's as simple as that, because Test cricket is what it is. For over 144 years, the best team in the world was always debated for this beautiful game that God created. A World Test champion had never been crowned, but all that's going to be turned around. और रुक जा यार, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा तू। अरे तो एडिट कर दूंगा ना, उसमें क्या है? अच्छा हाँ भाई, बात की एडिटिंग स्किल काफी अच्छी है भाई ने यार रैप्टर्स। हाँ, एक मीटिंग से भाई 2 शिकार करेगा। पीछे बोलिए हाफ टाइम मैच हो, 8 रन की जर्सी मांग के आ जाऊंगा। बहुत ही बढ़िया भाई। सिड तो ऐसे तैयार हो गया जैसे इंटरव्यू पे जा रहा है, शर्ट और पहन के। ये जो रोका हो रहा है आज। सही है। और क्या तेरे साथ भाई, यहाँ पे मैं आके मारेगी तो नहीं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अरे पहले ये बताओ, मेरी वीडियो पे नाम आ रहा है मेरा? आईपैड आ रहा है। आईपैड आ रहा है। ये क्या बकचोदी है, ऐसे कैसे होगा ये? इसलिए थोड़ा बहुत टेक्निकल होना बढ़िया रहता है। चैट मीटिंग मिनिमम, ये क्या है बहन? ये बताओ, ये टास्क करा लेते ना स्कॉचे वाले इससे। वहां पे अपने नाम आता है भाई, ये क्या दिक्कत है? ओ आ गया रीनेम। ओह भाई ने ढूंढ लिया तेरी। अब बता क्या रहा नाम? हमारा अमन खट्टर। बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, अब हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब विद सिड एंड डीजे। इसका हम एक नया टैंजेंट शुरू कर रहे हैं जो फोकस करेगा क्रिकेट पे, क्योंकि सिड और मैं दोनों ही क्रिकेट बफ्स हैं। तो हमारे साथ साथ और भी लोग जुड़ते जाएंगे जो क्रिकेट प्रेमी है, स्पोर्ट्स प्रेमी है। जैसे आज हमारे पास तन्मय भट्ट आफ्टर रिड्यूसिंग हिज वेट जुड़े हैं। तो ये इनका नाम है अमन खट्टर। इनको इंडिया और न्यूजीलैंड
your take, deserving finalist? Debatable, but if you're talking about like deserving, India definitely yes. Even if you look at their performance for the last 2 years, दोनों टीमों ने अच्छा किया है, no doubt. But मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड का थोड़ा सा easy रहा है route, और like even in the last series जो इंडिया इंग्लैंड की थी, I think बहुत सारे कॉम्पिटिशन से ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकती थी, इंग्लैंड पहुंच सकती थी, इंडिया पहुंच सकती थी, और न्यूजीलैंड का भी था चांस. बट हाँ, लाइक दोनों टीमें अच्छी टीमें हैं, ये नहीं बोलूंगा कि एकदम अनडिजर्विंग है. थोड़ा नीचे ऊपर नीचे हो सकता था, बट हाँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइनल. बट इस चीज में मैं अमन ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि हमेशा ये ना, इवन जो वर्ल्ड कप भी हुए ना, इवन सिंस 1990s या उसके पहले भी, सो इवन जब इंडिया भी 1993 का पहले वर्ल्ड कप जीता था, दे वर नॉट डिजर्विंग, नोबडी गिव देम अ चांस, राइट? सो स्टिल जीत गए थे. तो और ये बहुत बार होता है कि जो अनडिजर्विंग टीमें भी होती है ना, वो आ जाती है, वो पहुंच जाती है ना. इट वाज जस्ट, आई गेस, जो मेरे को रिमेम्बर होता है, ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी टीम है जिसने स्ट्रीक लगाई थी वर्ल्ड कप, दे वर द वर्ल्ड कप विनर्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग, राइट? उसके अलावा ज्यादातर अनडिजर्व टीमों ने जीते. इंडिया भी 2011 में डिजर्व करती थी एनीवेज, बट या ज्यादातर इधर उधर ऐसे जीत जाती हैं. हाँ, जस्ट लाइक 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हुआ था इंडिया पाकिस्तान, नो वन गेव पाकिस्तान अ चांस, एंड उसी टूर्नामेंट में लाइक इंडिया लिटरली थ्रैश्ड पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस में. So no one gave them a chance. And even अभी लास्ट ईयर का 2019 का फाइनल, लाइक इंडिया ग्रुप टॉप किया, दे रीच सेमीफाइनल्स, न्यूजीलैंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पहुंची क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में, बट लाइक या ऑन देयर डे दे वर टू गुड टू टीम एंड दे ऑलमोस्ट वॉन द फाइनल. They almost won the final, and या उनके साथ थोड़ी मेरे को लगता है कि ज्यादती हुई, बट वही देखो ना, लेकिन इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच नहीं हुआ था वो उसमें वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के साथ जो होना था, वहां पे भी बारिश हो गई थी. तो बहुत मैं पाकिस्तानी अगर चैनल्स में सुनता हूँ, तो दे वर लाइक, वो उनको भी होता है कि क्या होता है, इंडिया न्यूजीलैंड को हरा देता या पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता, तो न्यूजीलैंड पहुंचती भी नहीं. बट ये तो जैसे सिद्धू जी कहते हैं, अगर मेरी चाची की मूछें होती तो वो चाचा होते. सही बात है. और न्यूजीलैंड को तो मैं देखता भी ऐसे हूँ, दे आर लाइक बिग टूर्नामेंट किलर्स. मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था कहीं कि ICC tournaments में like they've had better of India, like 5 out of 6 times they've beaten India. Exactly. Like did they? Okay. Yeah, exactly. So ICC tournaments में they have a upper hand. Just like I think 2019 से पहले जब साउथ अफ्रीका होती थी, we knew like on paper best team है, they will definitely reach semi-finals or finals. But again, like that the term came up, chokers. So but New Zealand has a tremendous record in these tournaments. They play fearless cricket, and yeah, like anyone can win from here. 2016 के बाद, मतलब 2014 के बाद ये विन लॉस रेशियो जो है टेस्ट टीम का, इंडिया का 2.16 है, और सेकंड बेस्ट वर्ल्ड में न्यूजीलैंड का है 1.88. तो न्यूजीलैंड इतनी अंडर द रेडार टीम है. अमाउंट ऑफ क्रिकेट जो इंडियन टीम खेलता है, बिल्कुल एज कंपेयर्ड टू न्यूजीलैंड, तो आई सी कि इंडिया स्लाइटली एज, जस्ट ऑन डिजर्विंग बेसिस आई थिंक इंडिया इज स्लाइटली एज. बाकी तो लाइक ऑन देयर डे न्यूजीलैंड इज अ वेरी डेंजरस टीम, स्पेशली द बॉलिंग अटैक, दे कैन रन ओवर एनी बैटिंग लाइनअप. द अमाउंट ऑफ टेस्ट मैचेस जो पहले ड्रॉ होते थे, लुक एट द राइट कॉलम. इंडिया ने आई थिंक 6 सीरीज खेली है, एंड लाइक टोटल 12 17 मैचेस खेले हैं, only one draw. Don't you think that is like impact of maybe T20 cricket, maybe like people going for the win, players like Sehwag, Rishabh Pant contributing to that. वो भी है, और दूसरा मुझे लगता है कि थोड़ा बैटिंग लाइनअप्स हैव बिकम फ्रेजाइल. तो जैसे पहले स्कोर होता था 350 450, अब वो होता ही नहीं है. अब 300 के अंदर कितने सारी टीम्स ऑल आउट हो जाती हैं, तो 2 इनिंग्स जल्दी आ जाती है. बट मेरे को लगता है क्रिकेट चेंज हुई है. इट्स जस्ट लाइक क्रिकेट हैज चेंज्ड. इट्स नॉट लाइक कि पहले जैसी क्रिकेट वैसे भी नहीं रही है. सो मोर एंड मोर आई वुड से कि ड्रॉज कम होंगे. बट मैं एक्चुअली, मेरा एक क्वेश्चन था आप दोनों से. आई वाज लिसनिंग टू दिस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, और जब एंड इट्स रिगार्डिंग, उसने कहा था जब इंडिया ने जो अपनी 15 की टीम अनाउंस करी है, ठीक है, नॉट 11, आज अभी 11 की टीम अनाउंस कर दी है, लेकिन जो 15 की टीम अनाउंस करी थी, he said he was surprised कि शार्दुल ठाकुर नहीं है. उसका रीजन ये था, उसने कहा कि आपके पास 4 क्विक्स ऑलरेडी है, सिराज को मिला के 4था क्विक्स है, 5वां क्विक्स उमेश यादव को डालना. he said शार्दुल ठाकुर would have been that, you know, slightly all-rounder kind of
बंदा हो जाता कि जो सीमिंग कंडीशंस में ही कैन गिव यू दैट फोर्थ ऑप्शन एंड ही कैन बैट एज वेल, राइट? जो उसने ऑस्ट्रेलिया में किया था, और वैसे भी लाइक ही कैन बैट. तो मैं आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोगों के क्या ओपिनियंस है. आई वाज जस्ट काइंड ऑफ सरप्राइज कि ही वाज यू नो सपोर्टिंग शार्दुल ठाकुर, कि उसको होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ उमेश यादव, बिकॉज उमेश यादव इज डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग जो बाकी तीन कर रहे हैं. इसमें लाइक मेरा टेक ये होगा, लाइक आई स्टार्टेड डिसएग्री विद इट, बिकॉज अगर आप टीम का कॉम्पोजिशन देखो, लाइक इवन इफ यू टेक लेट्स से अगर बहुत ग्रीन विकेट होती तो आप शायद जडेजा को बाहर बिठाते, तो आप एक एक्स्ट्रा सिंबल लेके आते जो कि सिराज होता. लाइक अभी प्लेइंग 11 आया है तो सिराज नहीं है, तो प्लेइंग 11 में सिराज होता. आप इस टेस्ट चैंपियनशिप में जो बॉलिंग रिकॉर्ड्स हैं, उमेश यादव averages 18.96. That is his average in this championship. So he's performed really well. He's deserving. और like अगर तुम सीमिंग कंडीशन की बात कर रहे हो, ठीक है, शार्दुल ठाकुर gives you edge in batting, but as a bowler, wicket taker, I still feel Umesh Yadav has an edge over Shahrukh. Absolutely, yeah. That was just an opinion, yeah, उसका बंदे का. तो yeah, anyways, yeah, बिल्कुल, absolutely does. उसका सिर्फ ये मेरे को लगता है, I don't know वो ऐसे सोच रहा होगा maybe if there are conditions, जैसे भी overcast conditions है, and India might have to drop one out of Ashwin and Jadeja, and उससे उनकी बैटिंग थोड़ी सी वीकेंड हो जाएगी, तो इसलिए he was just you know fair enough. जैसे मुझे लगता है कि इन फ्यूचर, अब जैसे हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहा, हार्दिक पांड्या वाज सपोज्ड टू बी इंडियाज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, अब वो बॉलिंग नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि जो हार्दिक पांड्या का रोल है इन टेस्ट क्रिकेट, इन फ्यूचर वो शार्दुल ठाकुर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास और कोई बॉलिंग ऑलराउंडर है नहीं. शिवम दुबे है, बट शिवम दुबे हैजंट डन इनफ. बट शार्दुल ठाकुर इन माय ओपिनियन हैज डन अ लॉट, जितने भी उसको चांसेस मिले हैं. तो मुझे लगता है जो हार्दिक पांड्या का रोल है टेस्ट क्रिकेट में, उसकी जगह हम शार्दुल ठाकुर को यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो बॉलिंग कर ही नहीं रहा. डाउन द लाइन यस, क्योंकि ईशांत शर्मा आई गेस ही इज गोइंग टू गो आउट वेरी सून, मतलब या सो वो जगह सिराज को मिलेगी मेरे हिसाब से. और देन फिर ये जो फॉर एग्जांपल इन कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, वेयर यू नो अगर जडेजा और अश्विन में एक को बाहर बैठना पड़े, तो या मे बी व्हाई नॉट. बिल्कुल. हाँ, और स्पेशली द अमाउंट ऑफ लाइक जो फास्ट बॉलर्स इंडिया से आ रहे हैं, लाइक मैं कह रहा हूँ कि इतनी अबंडेंस कभी इंडिया के पास हुई नहीं. लाइक आज के डेट पे हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेनिटी है कि इतने सारे हम किसको चूज करें. लाइक इवन ऑस्ट्रेलिया सीरीज में who imagined कि बुमराह इंजर्ड होगा, ईशांत शर्मा होगा नहीं, कोई नहीं होगा, and they still go out and win the test match. नटराजन तक खेला टेस्ट, वो नेट बॉलर खेला. Exactly. Like 5 साल पहले तक अगर जहीर खान ही होता था तो we were like ठीक है मैच तो हार ही गए. Like we were so reliant on जहीर खान. सही बात है. इसमें कोई चेंजेस आप होते, कोई चेंजेस करते? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं यही टीम रखता. ये परफेक्ट बैलेंस है. I think दो जो क्वेश्चन उड़ रहे थे, one was कि whether they should go with 4 seamers and 1 spinner, और जो 3 और 2 और 3 में अगर ईशांत शर्मा या सिराज, I think they went with the experience, and again like the form ईशांत शर्मा is in and the experience he has played over 100 test matches, और उसका record in England. I think all these 3 factors I would have like wanted him in the 11, and I think this is a perfect 11. अगर मेरे को कोई एक चेंज करना होता मैं 15 में करता, बिकॉज अगर टीम इंडिया ने यही टीम सिलेक्ट करी है और जो बाकी 4 जो नहीं खेल रहे, आई थिंक हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा और उमेश यादव और शमी, राइट? तो मेरे को था कि सॉरी सिराज, तो ये 4 नहीं खेल रहे. मेरे को ये था कि अगर लाइक ये कॉम्पोजिशन पहले से डिसाइडेड था तो मैं प्लेइंग 15 में इंस्टेड ऑफ विहारी राहुल को रखता, जस्ट बिकॉज राहुल इज अ गुड फील्डर. अगर कोई बॉलर जाता है तो ही कैन कम एंड फील्ड बेटर देन हनुमा विहारी. 15 में चेंज करता, प्लेइंग 11 would have been the same. Okay. Yeah, and I would have changed 15 में साहा की जगह मैं राहुल को रखता, because he can keep wickets too. And I don't know, मतलब ये हर बंदे का अलग सिनेरियो और सोच होती है. मेरी सिनेरियो है कि राहुल को होना चाहिए था 15 में, but instead of साहा, because I don't see साहा contributing that much with the bat. ठीक है, तो मे बी इसलिए, बट एनीवेज मे बी उनको प्रोफेशनल मतलब यू नो वो T20s में ही करता है मेरे ख्याल से, वनडे में भी उसने करी है एनीवेज, बट स्टिल. लेकिन मैं अगर जैसे और ये जितनी भी मेरी अमन से बात हुई थी इन रीसेंट डेज, एंड हमारा जो एक जो पॉइंट रहता था, मैं सिराज के साथ जाता और
ये हमेशा ईशांत शर्मा के साथ जा रहा था। तो पटेल अगर पावर बट मैं कल स्टैट्स पढ़ रहा था दमन, एंड जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है ना, हर टीम के खिलाफ ईशांत शर्मा हैज टेकन 5 विकेट्स यार मैं अगेंस्ट एवरी टीम, खुद ईशांत शर्मा के साथ जाता, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया में ही वाज इंजर्ड, राइट? यार आई थिंक ईशांत शर्मा आफ्टर 2018 इंग्लैंड मतलब इंडिया का लीडर है, और इसकी जो एवरेज रही है मतलब दैट इज ओनली सेकंड टू बुमराह, बट इट इज better than Anderson, Rabada, Stuart Broad, Josh Hazelwood, Mitchell Starc, इन सबसे better है। He's very underrated. इंडिया की नई आदत हो गई है, एक दिन पहले ही अनाउंस कर देते हैं। Yes. I think ये अच्छी चीज है। It shows confidence. It shows confidence. Clarity कि हम क्लियर है, जो मुझे टीम लेके आओ, जो मुझे कंडीशंस हो, हमारी ये टीम है। And now the ball even players को नींद भी बढ़िया आती होगी, पता है मैं नहीं सबको पता है, हाँ कल खेलना है, कल इसमें मुझे वो, और वैसे भी मुझे लगता है कि मतलब जडेजा और अश्विन को दोनों को साथ खिलाना, क्योंकि इंडिया अगर न्यूजीलैंड टीम से हम कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है स्पिन एक ऐसा फैक्टर है जहां इंडिया की बहुत मार्जिनल लीड है। मतलब उनके पास सार्टनर और अजैक्स पटेल है, और हमारे पास अश्विन और जडेजा मतलब वर्ल्ड के बेस्ट फिंगर स्पिनर्स हैं। Absolutely. तो इस also उन दोनों की बैटिंग, लाइक जडेजा की बैटिंग साल में जो जडेजा की बैटिंग है, अश्विन ने अभी 100 करा इंग्लैंड के खिलाफ। 100%। अश्विन ने तो इतने 100 कर दिए, टिम पेन को सोचना चाहिए था बोलने से पहले। 500 है उसके टिम पेन से ज्यादा। हाँ, और मेरे को तो लगता है like however the result goes, I think अगर किसी को like man of the tournament जिसे बोलते हैं चैंपियनशिप का, I think Ashwin deserves it. उस amount of wickets he's taken, I think 70 plus wickets something, and उसने runs भी मारे हैं, like he's performed well in Australia, in India, like हर कंडीशन में किया। इंडिया की कोई वीकनेस है जिस चीज को उसको ध्यान रखना चाहिए मैच में कि हाँ मतलब ये गलती नहीं करनी? I think पहला 1 घंटा not losing early wickets, because जो भी इंडिया का कोलैप्स हुए हैं पिछले 2 जो मैं जो याद है मेरे को, एक वही एडिलेड टेस्ट मैच and even that semi-final against New Zealand, it was that 1 hour where we screwed up, क्योंकि even Adelaide टेस्ट मैच में like we got out of 36, हमने उनको ही आउट किया था, we performed okay in second innings, but वो 1 घंटा तो I think गिल, पुजारा and शर्मा, इन तीनों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहला 1-1.5 घंटा even if they're not scoring, just play their new bowlers, उसके बाद एक बार प्लेटफॉर्म मिल जाए then India have enough fire power, and फिर रहाने, कोहली, पंत, everyone's in good form, and they can like first inning score बहुत important होगा। मेरे को भी ये लगता है कि मतलब बैटिंग, अगर वीकनेस की बात करो, दमन ने वैसे कहा इंटरेस्टिंग पॉइंट मेक कर रहा था, लाइक बट मेरे हिसाब से बैटिंग है। इंडिया जब भी न्यूजीलैंड से हारा है, इंग्लैंड में हारा है, इट्स देयर बैटिंग ऑलवेज, इट हैज नेवर बीन देयर बॉलिंग सिंस लास्ट 2.5 years। इट्स 120 पे ऑल आउट हो जाते हैं, 190 में चेस कर पाए, सही में इंग्लैंड के साथ 170 पे ऑल आउट हो गए, तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप 170 पे ऑल आउट होने वाली है नहीं। हाँ, तो सही में नहीं है। लेकिन जो दमन का पॉइंट था वो एक्चुअली में काफी अच्छा पॉइंट था, वो इट्स अबाउट द स्लिप कैचिंग एंड द फील्डिंग, कि दैट्स आल्सो वन ऑफ द वेरी बिग, ये पहले कभी कैचेस इतने छूटते हुए हमने नहीं देखे टेस्ट मैच क्रिकेट में। स्लिप कैचेस लेटली मैंने बहुत मिस होते हुए देखे। हाँ, इंडिया लीडर है उसमें, तो ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा इशू जो है वो मेरे को लगता है साइडलाइन हो जाता है, nobody talks about it, कोई क्वेश्चन नहीं करता है, and in the final India cannot afford to do that. बिल्कुल ये बिल्कुल साइडलाइन, और with the kind of a team that India is right now, अब वो जब लक्ष्मण और द्रविड़ और तेंदुलकर थे, स्लिप कैचिंग वाज वे बेटर, और द्रविड़ तो खुद कहते हैं कि ये तो एक प्रॉपर टेक्निक है, इसकी तो प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। It's not like if you are a good fielder, you will be a good slip catcher. Oh no. वो तो है ना? Yeah. तो but anyways, हाँ ये एक इशू है जो थोड़ा सा है वीकनेस में, अगर इंडिया की देखे जाए तो ऑन अ बिग स्टेज बिल्कुल करेक्ट, वी कांट अफोर्ड टू लूज कैचेस। क्वेश्चन है कि इफ यू आर विराट कोहली और केन विलियमसन, व्हाट विल यू डू व्हेन यू विन द टॉस? कल टॉस जीत गए तो क्या करोगे? बिकॉज़ बारिश भी है, सरफेस हल्की सी ग्रीन भी है। I think ball first, क्योंकि वही सेम रीजंस कि वेदर फोरकास्ट है, बारिश का भी है, स्टार्टिंग में ओवरकास्ट कंडीशन भी हो सकती है, एंड यू कैन यूज द पिच इन द फर्स्ट आवर्स। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट इनिंग का स्कोर पॉइंट होगा, एंड इंडिया हैज द सेम लाइक फायर पावर इन द बॉलिंग, लाइक बुमराह, ईशांत और शमी, लाइक इफ दे कम ऑल guns blazing, पहले एक दो घंटे में दे टेक 4-5 विकेट्स,
and then Ashwin can literally run through the tail enders. तो वो 1-2 घंटे इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को क्या पता सुबह उठते ही शास्त्री ने पैक पी लिया और बोला अश्विन तुम बैठो, सिराज खेलेगा। बारिश को देख के पी वो उल्टा हो जाएगा, वो बोलेगा नहीं बोलते अश्विन बॉल डालेगा आज। हाँ यार, ओवरकास्ट कंडीशन से ओवर मामला काफी चेंज कर दिया वेदर फोरकास्ट ने। अदरवाइज चेंज कर दिया। बैटिंग इज अ नॉर्मल चॉइस होती है लोगों की कि 4 डे किसको चेज करना और बेकार पिच पे खेलना अच्छा है, बट बिकॉज ऑफ दिस ओवरकास्ट कंडीशंस यस या बट आई थिंक लाइक दैट इज माय बिगेस्ट फियर कि अगर लाइक इतना 2 साल पूरा टूर्नामेंट होने के बाद, इतने सारे अच्छे मैच होने के बाद अगर मैच ड्रॉ सीरीज ड्रॉ हो जाए, नॉट वर्थ इट। और जैसे कल सीडी बता रहा था, आई डोंट नो सचिन ने किसी ने रिकमेंड किया था कि अगर फाइनल भी है तो इट शुड बी लाइक अ सीरीज कि 3 मैच की सीरीज करा रहे हो। हाँ, शास्त्री ने बोला था ये, शास्त्री ने बोला था कि बेस्ट ऑफ 3 करा लो। 3 हाँ, ऐसा कुछ होना चाहिए था। जैसे मैंने पहले बोला कि पहला फॉर्मेट था, तो अभी और चेंजेस आएंगे, यू नेवर नो कि अगले में क्या ये अलग लेके आते हैं। बट डेफिनेटली अब ये एक चीज अच्छा किया है कि टेस्ट मैच भी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। लाइक लास्ट टाइम इतना बिल्डअप हुआ था एक मैच के लिए। बिल्कुल ठीक है, जब सीरीज चल रही होती है, अच्छा मैच चल रहा है तो पीपल देखते हैं, करते हैं, बट अब एक मैच के लिए इतना बिल्डअप, लाइक एवरीवनस प्रिपेयरिंग, सबको सुबह उठना है, लाइक वीकेंड के प्लान चेंज हो रहे हैं इसके लिए। अरे YouTube वीडियो शूट हो रही है यार, इट्स वीडियो शूट कर रहे हैं हमने कभी ऐसे नहीं किया। सही है। तो नहीं, 100% की ऐड कर रहा है एंड ग्लोबल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल, सचिन ने जो बोला था, उसने बोला था जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज है ना, ये बाद में स्केड्यूल हो सकती थी नेक्स्ट मंथ के लिए, या किसी टीम को एडवांटेज नहीं होना चाहिए, एडवांटेज के लिए दोनों की दे शुड, मतलब दोनों लैंड करें और प्रैक्टिस करें और सीधा मैच खेलें। ऐसा नहीं हो कि वो पहले वहां पे टूर करके दे यार। सही में क्योंकि अब न्यूजीलैंड के पास थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज है, because they've played 2 match, they've tried their combination, so, और इसी सीरीज की वजह से now I'm pretty sure कल के मैच में सैंटनर तो नहीं खेलेगा। If they go with सैंटनर नहीं खेलेगा, it will be Patel, if not then all pace attack, but now they know their combinations। Williams हमको रेस्ट मिल गया, like they got used to the conditions, बिल्कुल, it gives them an advantage। and Indian team 15 दिन क्वारंटाइन करने के बाद they came to practice and it's been raining, so थोड़ी प्रिपरेशन में भी हैम्पर हुआ है इंडियन की, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट लाइक इस चीजों में तो किसी का हाथ नहीं है। तो या अब देखो ना, डेवन कॉनवे ने 300 रन मारे, सही में 306 रन है ना, पूरा फॉर्म में। हाँ, अगर ये आता और यू नो नाउ हिज कॉन्फिडेंस विल बी वे अप। 76 की उसकी एवरेज थी, है ना, तो अब वो आते और ये अगर हम मतलब सेम टाइम पे आते, सेम टाइम पे लैंड करते, सेम टाइम पे प्रिपरेशन होती, क्योंकि अभी भी 1 महीना पूरा खाली है इसके बाद। जो इंडिया इज प्लेइंग इंग्लैंड, दैट्स इन अगस्त, बीच में पाकिस्तान जरूर टूर करेगा इंग्लैंड को, एंड दैट्स जस्ट लाइक फॉर शॉर्टर फॉर्मेट, नॉट टेस्ट क्रिकेट। और आई थिंक नॉट जस्ट बैट्समैन कॉन्फिडेंस, न्यूजीलैंड एज अ टीम कि इंग्लैंड ने आगे इंग्लैंड को हरा दिया, so now they'll be very confident कि ठीक है, लाइक एक मैच है अभी हम करके आ रहे हैं, तो they can be more prepared for Indian challenge। कि मतलब कल को, क्योंकि ऑब्वियसली टॉस तो केन विलियमसन ही जीतेगा, क्योंकि विराट कोहली तो टॉस नहीं जीता है। तो विराट कोहली मैच जीतता है वो सीधा। तो कल इंडिया की बैटिंग आने वाली है पहले घंटे में, तो आई होप कि पुजारा को पहले 1 घंटे में आना ही ना पड़े और शुभमन गिल और रोहित शर्मा पहला आर निकाल ले आराम से। जैसे लक्ष्मण का मैं पढ़ रहा था, वो बोल रहा था कि रोहित शर्मा शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लीविंग द बॉल्स आउटसाइड ऑफ स्टंप, and not go for it within the first hour। तो hopefully 5 दिन बाद इंडिया picks up the first inaugural World Test Championship। क्या पता 5 इंग्लिश बोल देना पड़े, 3 दिन में उठा ले। हो सकता है छठे दिन में भी जाना पड़े, छठे दिन उठाए। हो सकता है शेयर करियो। Yeah, but weather forecast is चूतिया। It's a mood killer यार। इससे बेटर तो यहाँ पे टोरंटो में करा लेते। समर चल रही है अच्छी खासी। समर बढ़िया चल रही है। हाँ, कोई चीज सकते हैं, because it's ICC की इवेंट है ये, then Indian Pakistan should also play Test cricket because it's an ICC event। Yeah, absolutely, definitely। चाहे न्यूट्रल वेन्यू पे, चाहे कहीं पे भी कराओ। Yeah, I think because it's people an are ICC dying। event। Yeah, people are dying and it will give a more new like a अलग ही वो कहते हैं ना जज्बा होगा उस चीज का कि इंडिया पाकिस्तान इतने सालों से टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, and if they get to play especially the part of this, just imagine यार कि नेक्स्ट फाइनल इंडिया और पाकिस्तान का और इंग्लैंड में,
like how good that will be for the cricket and for the fans. तो वो है बिल्कुल हाँ. और क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान वाली राइवलरी चल गई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी राइवलरी है, बट मजा ही नहीं आता इंडिया पाकिस्तान मैच देखने का. हाँ अब वो ना हाँ गो अहेड. नहीं बोल. मैं कह रहा था कि हाँ जैसे अभी भी इंडिया पाकिस्तान अब जैसे मिलते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में मिले, वर्ल्ड कप में मिले, तो अब उन मैचों की वेट करनी पड़ती है और वो वेट बहुत ज्यादा है. और वाइड बॉल तो आई थिंक कब 2006 में लास्ट खेला था, आई एम नॉट श्योर, जो ये टेस्ट मैच खेला है. आई थिंक इट्स बीन मोर देन 10 years. So yeah, definitely like अब और अबू धाबी दुबई में मैच होते ही हैं, तो they should go for it. They should go for it. और players like Virat Kohli, Rohit Sharma, they should have that chance of playing with Pakistan. At the peak है ना, ऋषभ पंत वगैरह इन सबको मिलना चाहिए. एंड मेरे को भी ऐसा लगता है कि बाबर आजम, उधर से उनका रिजवान, they have been performing. They're not like the same right now जो पाकिस्तान हुआ करती थी, but yeah. भाई पाकिस्तान का कुछ भरोसा नहीं, अभी आगे इंग्लैंड को हरा दे. On their day तो वो कुछ भी कर सकते हैं. On their day तो कुछ भी कर सकते हैं वो. जैसे इंडियन फैंस को वो T20 का मैच जिम्बाब्वे से हार गए 115 नहीं चेस कर, and they can chase 3 run T20. और मैं कह रहा हूँ अगले, और स्पेशली अगले 2-3 जो आईसीसी टूर्नामेंट जो सब कॉन्टिनेंट में होने हैं, T20 वर्ल्ड कप जो भी है, तो पाकिस्तान की टीम टू वॉच आउट फॉर. मैं कह रहा हूँ ओपनिंग भेजो ऋषभ पंत और जडेजा को. पहले दिन पहले घंटे में क्या सीन उनको फर्क नहीं है, क्या सऊदी क्या बोल्ट सब बराबर. पंत रिवर्स छक्के मार रहा है बोल्ट को. भाई एंडरसन को मार दिया. मेरे को लगता है टेस्ट क्रिकेट एक्चुअली पंत ने बहुत बड़ा इंक्लूजन है इंटरेस्टिंग बनाने में. पंत का वैल्यू भी ऐड है यार, बहुत अच्छी वैल्यू ऐड है ना. आप 330 ऑस्ट्रेलिया में बिना पंत के नहीं चेस कर सकते हो. किसी ने सोचा ही नहीं था. आई थिंक अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में पैट कमिंस ने पूछा कि उसको, वो रेडियो पे गया था ऑस्ट्रेलिया में किसी लोकल, उससे पैट कमिंस से पूछा कि आज की डेट पे पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में हु डू यू थिंक ऐसा बैट्समैन है लाइक यू पे टू वॉच या जो अपकमिंग है. एंड सी लाइक वो ऑस्ट्रेलिया का भी बोल सकता था, लाइक नंबर 1 टच बॉलर, ठीक है, पैट कमिंस. एंड ही सेड ऋषभ पंत, एंड ही सेड कि you want to see people who go out on day 5 to chase 330 का टारगेट. Like you don't expect that from Pujara or Smith or Labuschagne or Rahane, no. But Pant, Jadeja, will be like there few of those कि जो वो गुत्ता दिखाएंगे कि चल 100 पे 5 आउट भी हैं, स्टार्टिंग तो चाहिए, सेव तो वैसे नहीं हो रहा, लेट्स गो फॉर इट. सही बात है. बिल्कुल तो बहुत जरूरी है. नहीं बिल्कुल या तभी तो मुझे लगता है जैसे ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की आप टॉप 5 इनिंग्स निकालो तो इसमें पंत का नाम तो 100% होगा, जो उसने गाबा में किया. 2021 में he is a leading run scorer for India. 2021 में I think India has played 3 test matches in Australia, 4 in India. So around in 7 test matches he's the highest scorer. Yeah. Wow. Okay. Nice. Yeah. और वैसे ओवरऑल मतलब जैसे मेरे को एक लगता है एक और चीज, जैसे हम अजिंक्य रहाणे का बहुत क्रिटिसिज्म मैं देखता हूँ, बट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो इंडिया का हाईएस्ट रन गेटर है. उसका हुआ था, उसका बनता भी था, बिकॉज वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अजिंक्य, लाइक वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम विराट. ठीक है, उसने वेस्ट इंडीज वगैरह में उसने ही स्कोर्ड दोस सेंचुरीज, बट बिफोर दैट मेलबर्न 100 उस पे क्वेश्चन मार्क्स थे. बिल्कुल थे है ना. बनता भी था उस पे. एंड ही स्टूड अप and he got that 100 and yeah, but लेकिन यही होता है यार अपने प्लेयर्स को. अब मैं यहाँ पे कोहली को इसलिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा, उसने शुभमन गिल को बैक कर रहा है वो. हाँ बिल्कुल क्योंकि बहुत इजी. इंग्लैंड सीरीज अच्छी नहीं गई, बट तू ही करेगा. एग्जैक्टली सही बात है. बहुत इजी है अभी आज की डेट में केएल राहुल को लाना. उसने लाइक सेंचुरी मारी है, ही हैड अ डिसेंट आईपीएल, तो बहुत इजी है. और इसी लाइन में ये बोलूंगा कि जैसे हम क्रिटिसाइज रहाणे को कर रहे थे, हम क्रिटिसाइज कोहली को भी कर रहे हैं कि 2 साल से सेंचुरी मारी है. बट इफ यू लुक, ही हैज एन एवरेज ऑफ 46. बट इसकी एवरेज उसकी इस टेस्ट चैंपियनशिप में उसका हाईएस्ट स्कोर 254 है. ही हैज 104 50s, व्हिच इज अ गुड रिकॉर्ड. इट जस्ट दैट कि कोहली के स्टैंडर्ड्स यहां सेट है. सो इफ ही अचीव्स दिस, we are like no, not good enough. Absolutely. 50-60 हजम नहीं होते शायद. बट मैं तो चाहता हूँ ये फाइनल में फोड़ दे कोहली, मतलब एकदम 200 छोटा चाहिए ही नहीं, 200 सीधा. और मैं कहता हूँ वैसा ना जो अग्रेसिव कोहली होता है, जो डोमिनेट करता है, बोल के मारता है, वैसा कोहली. एंड एक्चुअली वो थोड़ा टाइम हो गया यार मेरे को भी देखने में.
जो उसने मिचेल जॉनसन की वार लगाई थी ना, दे देंगे फियर फैक्टर जो एक बार जो भी पंत में जो एक टाइम पे कोहली में होता था, है ना, एंड he still has that, but it's just missing because हमने वो सेंचुरी नहीं देखी ना थोड़ी टाइम से। I think और वो भी फैक्टर कि बैटिंग स्टाइल ना, अगर आप देखो तो जैसे से रिस्पांसिबिलिटी बढ़ती है तो चेंज होता है। We saw that in धोनी as well। लंबे बॉल दे देगी, कोई टेंशन नहीं, बट जैसे जैसे वो थोड़ा रिस्पांसिबल हुआ, फिनिशर रोल के खत्म करना है, डीप लेके जाना है, स्ट्राइक रेट नीचे जाने लगा, एवरेज बढ़ने लगी, बिकेम मोर रिस्पांसिबल। So I think that's the same thing with Kohli। अब जैसे टीम नहीं आई थी, गिल नहीं आया था, पंत नहीं आया था, मिडिल ऑर्डर सेटल नहीं था, मे बी लाइक फाइनल है या अगली सीरीज में when he knows कि एक बैटिंग लाइनअप स्टेबल हो गया है, so we get to see the old Kohli। अब ऐसे तो बिल्कुल ऐसे तो चेतेश्वर पुजारा ने भी कोई सेंचुरी नहीं मारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में, नो सेंचुरी, only 950s। I was reading it yesterday। But no century। उसकी भी एवरेज 36 अराउंड है। हाँ। But anyway, but he was instrumental when we won that last test। ऑस्ट्रेलिया आप जीत ही नहीं पाते पुजारा के बगैर, नहीं जीत पाते। अरे वो खड़े होके वो he was not playing a shot कि कैसे है वो बॉल खा रहा था भाई, क्योंकि लास्ट I think the last time India toured Australia, it was not part of this ICC Test Championship। 19 में शुरू हुआ था ये, वो वाली सीरीज तो आप जीत नहीं होते पुजारा के बिना। Like he was scoring hundreds for fun and he was the only batsman जो खड़ा हुआ है। और जबकि लाइक हम बात कर रहे थे कि स्मिथ और वॉर्नर नहीं है, बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया का फुल प्रूफ था उस टाइम, फुल प्रूफ था। लाइक दे हैड स्टार्क, दे हैड कमिंस, दे हैड एवरीवन, एंड लाइक पुजारा स्कोर्ड अगेंस्ट देम। सो पुजारा लाइक टेस्ट मैच में आई स्टिल फील कि ठीक है, पुजारा और रहाणे दे आर स्टिल इंस्ट्रूमेंटल, बिकॉज वो मे बी दे विल नॉट प्ले मैच विनिंग इनिंग्स बट दे विल डेफिनेटली प्ले मैच सेविंग इनिंग्स, जो कि बहुत जरूरी है। मैं तो चाहती हूँ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पुजारा, रहाणे, ईशांत, अश्विन, विहारी जो खेलते सिर्फ टेस्ट मैचेस है, उनके लिए तो वर्ल्ड कप फाइनल है ये। आई होप इंडिया जीते यार, बिल्कुल सही। अब टेस्ट मैच के बाद मिलेंगे और इसको एक हम सोच रहे हैं कि इसको एक रेगुलर फीचर बनाए, मतलब क्योंकि हम लोग क्रिकेट फैंस हैं यार, अब क्रिकेट के बारे में 1 घंटा तो बात कर ही सकते हैं। खट्टर तो 6 घंटे करेगा भी बैठ के। मैंने बोल दिया भाई, सेठ दबंग बोल दिया, जितने तुम्हारे व्यूज आएंगे 100 से ऊपर 50 और लूंगा मैं हर 100 के। फिर तो ऐसा तो कर दे $100 के लिए। इसको थंबनेल में डाल देंगे ना।